Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you are doing very well, fit and fine, healthy, and you are studying very well. Okay, you are practicing because this is our spoken class. So I expect that you are trying to make different sentences, you are thinking about different questions, and you are practicing as much as possible. So you are trying to take out some free time from your studies. I know that you study different subjects, and sometimes it becomes difficult to practice, but you have to make sure that on daily basis, and that is important, that on daily basis you are taking out some free time, maybe 15 minutes. 15 minutes are enough. So if you are able to take out even 15 minutes, then you are doing well. You are making sentences. If you have some friends, then you can discuss with your friends. You can make some sentences, you can ask some questions, and that way you can practice. So remember, this is very important to use the language continuously on regular basis. And why is it important? It is important because you should get into the habit of using the language. So जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, and then you will get different ideas in terms of thinking, in terms of making sentences, in terms of asking questions, in terms of understanding different parts of the different structures. So far we have covered some topics. These topics are related to verb to be, possession, there as a subject, it as a subject, and now we have started modal verb has to, have to. And today we are going to continue with that part of modal verb where you will see how to use modal verb has to, have to in different situations, in different sentences, how to make some sentences. We saw some examples in the last class related to modal verb, how to make positive sentences, how to make negative sentences. So as you are understanding these different parts, as you are understanding that how to make different questions related to different situations, how to use these structures. So now, what is the point? The point is that you are thinking a lot. You are thinking a lot and you are trying to make different sentences, because that is important, that you are trying to think, that you are trying to think about different situations आप सोच रहे हैं, and then आप वहाँ पे try कर रहे हैं कि किस तरह से मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, किस तरह से मैं कोई सिचुएशन के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ, राइट? सो इस तरह से आपको ट्राई करते रहना। एंड अगर आपके साथ फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, देयर इज समवन विथ जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छा है वो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, सो फिर आपको खुद से अकेले से प्रैक्टिस करना है। एंड ये पॉइंट बार बार हर क्लास में होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमको इस पे ध्यान दे। एंड इसका क्या रिजल्ट होगा अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट ये होगा कि आप उन पार्ट्स, जो पार्ट्स हम कर चुके हैं, उनमें आप बहुत कंफर्टेबल हो जाए। ओके, सो जैसे आज हमारा 15th डे, सो 15th डे, आज 15th डे है, 14 डेज में आपने क्या क्या पार्ट्स कवर कर लिए हैं, तो उन पार्ट्स में इन 14 डेज में आपको कंफर्टेबल होना है। ओके, सो टारगेट यही है, आइडिया यही है कि जैसे जैसे आप जो पार्ट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, इट सिंपली मींस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, दैट इज वेरी गुड। सो हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि हमको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप समझने के बाद उसको क्या यूज कर पा रहे हैं, उसमें आप कंफर्टेबल हो गए, आपको डिफरेंट सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर गिविंग आंसर्स, यू आर थिंकिंग properly, comfortably, you are not translating sentences into your head, you are not translating from Hindi to English and then from English to Hindi, ऐसा आप कम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू दैट एट ऑल, लेकिन धीरे धीरे आप उसको कम करिए। ओके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, दैट यू डोंट ट्रांसलेट, यू डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपनी हैबिट डालेंगे, सो डेफिनेटली हैबिट डल जाएगी।
इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो ये जब आप करेंगे तो आप इन सारे पार्ट्स में धीरे धीरे कंफर्टेबल होंगे। सो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आप समझ भी रहे हैं और आप भी धीरे धीरे उन पार्ट्स में कंफर्टेबल भी हो रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज धीरे धीरे ही आती है, एकदम से नहीं आएगी। क्योंकि ये पॉइंट भी मैं हमेशा आपसे क्लास में बोलता हूँ कि आपको पेशेंस रखना है। धीरे का मतलब ये है कि हमको ऐसा नहीं सोचना है कि आज हमने समझा और आज हम उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल होंगे। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको कंटिन्यूअसली उसको यूज करना है। ओके, सो ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस वाला। अब वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट दिखेगा, उतना ज़्यादा आपको दिखेगा दैट यस आई एम कंफर्टेबल, थोड़ा सा कम कंफ्यूजन हो रहा है, कम हेजिटेशन हो रहा है, आई कैन आस्क क्वेश्चन, आई कैन गिव आंसर्स। ओके, सो ऐसे ट्राई करेंगे और अपने आप को टेस्ट भी करते रहिए। ओके, अब टेस्ट का क्या मतलब है, अपने आप को टेस्ट ऐसे करिए कि किसी ना किसी से कोशिश करिए कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछें, उनसे बोलिए कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए, एंड देन वहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करेंगे, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या आप उसका प्रॉम्प्टली आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अगर प्रॉम्प्टली आंसर आ रहा है, जैसे ही क्वेश्चन आया आपने फौरन से आंसर दिया। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्या आप क्विकली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसको ट्रांसलेट तो नहीं कर रहे हैं, पहले ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट यू आर थिंकिंग इन हिंदी, देन यू आर ट्रांसलेटिंग इन टू इंग्लिश, एंड देन यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ऐसा लॉन्ग प्रोसेस हो गया है, तो इसको आपको शॉर्ट करना है। एंड इसके लिए जितना ज़्यादा आप अपने तरफ से ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता रहेगा, राइट, उतना ज़्यादा क्लियर होता रहेगा। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन समझेंगे, सो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके पास हो जाएगी, उनकी नॉलेज भी हो जाएगी उन स्ट्रक्चर्स की, उन सिचुएशंस की। लेकिन नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं, नॉलेज होना अ, ठीक है कि हमको अंडरस्टैंडिंग है, हम किसी को सुनेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, हम कुछ रीड करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं, आप क्लासेस सुन रहे हैं, वो ये है कि आपको स्पोकन अपनी इम्प्रूव करना है। एंड उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी बेटर रिजल्ट्स। ओके, चलिए, ये थोड़ी सी बातें रोज क्लास में होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया मिलते रहना चाहिए कि प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, हमको ये नहीं समझें कि हमने टॉपिक कर लिया, हमको सेंटेंसेस समझ में आ गए, दैट्स ओवर। नो, वहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है, वहाँ से तो स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट क्यों हुआ है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया। समझ में आया है तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करें, जितना ज़्यादा कोई सेंटेंस, कोई सिंपल सा ही सेंटेंस क्यों ना हो, आप जितनी बार उसको यूज करेंगे, जितना ज्यादा आप बोलेंगे, इट मीन्स वो आप उसमें कंफर्टेबल हो रहा है, वो आपकी हैबिट में आ गए। जैसे वी स्पीक हिंदी, तो हिंदी भी हम क्योंकि हैबिचुअल हो गए। यू डोंट थिंक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और बिफोर स्पीकिंग, यू जस्ट स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू से। ओके, सो एकदम डायरेक्टली आता है विदाउट थिंकिंग, बिकॉज यू आर हैबिचुअल of using the language, you are habitual of making, of asking questions. So in the same way, if you want to be कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज, तो जितना ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा हम हिंदी बोलते हैं, राइट, तो इसलिए धीरे धीरे उसमें अब हम कंफर्टेबल हैं, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन से एनीथिंग। So in order to be comfortable with English language, you have to keep on using, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस करें, फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में बिठा लें थोड़ी देर, जब क्लास चल रही है तो उनको भी आइडिया हो जाएगा कि ओके ये क्लास में हो रहा है, तो हमको इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा उनको भी आइडिया मिल जाएगा। एंड आइडिया मिल जाएगा तो फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स, चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडल वर्ब हैज टू, हैव टू, एंड टुडे इज आवर 15th day, and on this 15th day we are going to see how to use modal verb has to, have to related to present situation, how to make sentences, how to ask questions with the help of some exercises.
All right. Okay. Are you ready? ठीक है. चलिए. I'm going to share my page with you. Give me a moment. Here we go. All right. And we were doing modal verb has to have to. As I told, that understand the situation where we use them. So हर structure, हर sentence के लिए आपको उसकी situation समझना जरूरी है. Because that's how you use it. That's how you make sentences. So for this, modal verb has to have to, as I told in the last class, there could be two possible senses, two possible meaning related to these situations. Hmm. So, for example, let's say you want to say, I have to do this. Okay, I have to go, right? It's something you want to say, it's important, it's necessary. And that's why we call it modal verb, right? So there are so many modal verbs as we discussed in the last class, but we are paying attention to this modal verb right now because it is used in normal sentences also. नॉर्मल सेंटेंसेस में भी हम इसको यूज करते हैं. सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के सेंस निकलेंगे. एक तो नॉर्मल सेंस, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है, सो यू आर सेइंग आई हैव टू गो. एक सेंस निकलेगा ड्यूटी वाला, ऑब्लिगेशन वाला, राइट. वो सेंस कैसा निकलेगा वो अभी हम देखेंगे. अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो नॉर्मल सेंस पे कर रहे हैं. दैट इज रिलेटेड टू समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नेसेसरी. एंड फॉर दैट, इन ऑर्डर टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस, आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. ओके. जब भी हम कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो उससे हमको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि हमको उनको याद करना है. आपको याद नहीं करना. सो कुछ भी याद नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको कि आपको लर्न करना है. ओके. यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड. सिर्फ ये समझ जाइए कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारे सेंटेंसेस कैसे यूज होंगे. एंड फिर उसी के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार यूज करके देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा. तो याद करने वाला यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए दैट देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू मेमोराइज. ओके. सो यू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर for positive sentences related to subject. Subject singular है, there is a small change. Subject plural है, there is a small change. And in all these sentences हम verb के first form use कर रहे हैं. तो आपको वर्ब्स के भी आइडिया होना चाहिए. ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कोई वर्ड देख के समझ जाएं कि ये वर्ब है या नहीं है. वो भी आपको होना चाहिए. बिकॉज एडजेक्टिव्स भी हैं, एडवर्ब्स भी हैं, नाउन्स भी हैं, प्रोनाउंस भी हैं, प्रेपोजिशंस भी हैं. ओके. तो कोई भी वर्ड देख के आपको इजीली रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए वेदर इट इज अ वर्ब और नॉट अ वर्ब. ओके. सो वो कैसे पहचानते हैं वो भी इजी है. अगर हम देखें कोई भी एक्शन अगर हमको पता चल रहा है किसी वर्ड से, किसी वर्ब से, तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ब, इट इज अ वर्ब. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस. ये तो हमने लास्ट क्लास में कर ही लिए थे. सो जल्दी से एक बार और रिव्यू कर लीजिए. What is important? According to the subject we are using has to have. So इसमें जो सिंपल सा चेंज आ रहा है इन सेंटेंसेस में, वो आ रहा है हैज टू एंड हैव टू का. एंड वो क्यों आ रहा है? बिकॉज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है हमको. सो सिंगुलर सब्जेक्ट हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट हैव टू. एंड व्हाट इज द सेंस कमिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या सेंस निकल रहा है इन सेंटेंस का. दैट समथिंग इज इंपॉर्टेंट, नेसेसरी. सो आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है. दिस इज सिंपल सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, आई हैव टू प्ले क्रिकेट. दिस इज द सेंस कमिंग. वेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस, जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे फिर एक छोटा सा चेंज होना है. एंड ये चेंज आपको ध्यान में रखना है. एंड सेंटेंसेस को यूज कर करके उसमें हैबिचुअल हो जाना है, उसमें कंफर्टेबल हो जाना है. सो व्हाट इज द चेंज कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हम ट्राई करेंगे, सो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डजंट एंड डोंट यूज करेंगे. ओके. सो सिंपल आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है. So if subject is singular, you will use doesn't and then have to and then verb first form. Simple. And when subject is plural, you will use don't and then have to and then verb first form. Doesn't have to and don't have to. Okay. So that's how you will make these sentences like these. Okay.
सो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस आप बना रहे हैं. ओके, एंड इनके एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे एग्जांपल्स आ रहे हैं. These are the examples for negative sentences, and you are making negative sentences. See the sense coming out from these sentences. क्या sense निकल रहा है इन sentences से. This is also important. तो आपको ये भी समझना है कि क्या sentence का sense निकल रहा है. So if you are seeing this sentence, she doesn't have to buy the phone. समझ जाइए क्या सेंस निकलना है. दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हर टू डू दिस. वी डोंट हैव टू गो देयर. हमें वहां नहीं जाना है. I don't have to ask a question. So it's not necessary. It's not important. I don't have to ask a question. Now, what is the sense coming? मुझे question नहीं पूछना है. They don't have to attend the party. So it's not important for them. They don't want to attend the party. They don't have to attend the party. उन्हें party attend नहीं करना है. Okay, so here you are making negative sentences with the help of has to and have to. And because यहाँ पे negative sentences बना रहे हैं हम, तो हमारे लिए क्या important है? हमारे लिए important समझना ये है कि हम doesn't use कर रहे हैं and हम don't use कर रहे हैं. एंड क्यों यूज कर रहे हैं? वो सिंपल है पॉइंट. क्योंकि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं. सो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, सो हम डोंट यूज कर रहे हैं. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, हम डजंट यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट क्या बात हो रही है. अभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट से हम क्या समझते हैं. अभी आपने स्ट्रक्चर्स भी देखे, तो स्ट्रक्चर्स में ये जो लिखे हैं, ये राइट, ये टर्म्स जो लिखे हैं हमने यहाँ पे, इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट. सो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं. ओके, सो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी वेरी क्लियर. कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, क्या ताकि उनमें सेंटेंसेस में कंफ्यूजन नहीं हो. अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसा भी होगा जब आप ट्राई करेंगे, जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, तो सेंटेंसेस यूज करते वक्त, बोलते वक्त आप कभी डजंट की जगह डोंट यूज कर लेंगे, डोंट की जगह डजंट यूज कर लेंगे. ये होगा. दिस इज वेरी नॉर्मल. तो ऐसा नहीं समझना है आपको कि अरे मैंने तो अच्छे से समझ लिया है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों कंफ्यूजन हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आई एम यूजिंग डजंट इन प्लेस ऑफ डोंट एंड समटाइम्स डोंट in place of doesn't. This will happen. This is natural because you are practicing, you are learning. So जब धीरे धीरे आप इसको यूज करते रहेंगे, इसलिए तो बात हो रही है कि जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे. सो जब आप ज्यादा यूज करते रहेंगे, सेंटेंसेस बोलते रहेंगे, वो नेचुरल हो जाएगा. फिर ऑटोमेटिक सेंटेंसेस आएंगे. राइट, फिर ये मिस्टेक्स नहीं होंगी. इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी. ओके, डजंट, डोंट, ये फिर नेचुरल हो जाएगा. Okay, now next important point is that how to ask questions using this situation. इस सिचुएशन को यूज करके कैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे. इस सिचुएशन को यूज करके, जिसको हम हैज टू हैव टू मॉडल वर्ब बोल रहे हैं. इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, देन यू विल फॉलो दिस स्ट्रक्चर. एंड अगेन यहाँ पे हमको दो स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना है. क्यों ध्यान रखना है? बिकॉज अगेन बात वही होगी सब्जेक्ट. Okay, according to subject, you have to make a question. So, for example, if you want to ask a question related to singular subject, okay, you will start your question with does, and then ये तो हम use कर ही रहे हैं. Okay, so बस आपको बस क्या ध्यान रखना है? If you are asking a question about singular subject, you will start your question with does. If you are asking question about plural subject, you will start your question with do. बाकी ये टर्म्स तो सेम है, हर जगह यूज होनी ही है. सो सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाते वक्त, पूछते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है? डज एंड डू. So if you are asking question about singular subject, your question will come with does. If you are using plural subject, your question will come with do. Okay, for example, ये examples देखिए यहाँ पे. Okay, there are different questions in these examples. Somewhere questions are with does, somewhere questions are with do. So यहाँ पे जितने भी questions देख रहे हैं आप, इन questions के आप आंसर ट्राई करें.
ओके, एंड आंसर जब ट्राई करेंगे तो अगेन आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन से पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, दो आंसर आ सकते हैं इन क्वेश्चंस के, या तो हम यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है, क्वेश्चन का क्या सेंस आ रहा है, एंड व्हेन यू आर गिविंग द यस नो आंसर देन व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम दैट आंसर, उस आंसर से क्या सेंस निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डज शी हैव टू गो टू द मार्केट, possibly you will say yes, she has to go to the market. So now there is a difference. She has to go to the market. And when you make it negative, no, she doesn't have to go to the market. So ये जो parts है ये एकदम आपको click करना चाहिए कि does she have to go to market? Then what is the positive answer? Yes, she has to go to market. What is the negative answer? No, she doesn't have to go to market. सो ये जो क्लिक वाला पार्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि एकदम आपको क्लिक करना चाहिए, ये क्लिक भी एकदम से नहीं होगा। जब आप उसको बार बार यूज करके देखेंगे, शुरू में स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक्स होंगी, कंफ्यूजन होगा, राइट, थोड़ा सा सेंटेंसेस में डज शी हैव टू की प्लेस पे कभी यूज कर लेंगे, आप हैज टू यूज कर लेंगे। ओके, सो ये कंफ्यूजन्स होंगे, लेकिन जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, सो इसका आंसर ऐसे करना है। ओके, सो इसलिए बार बार ट्राई करके देखना इंपॉर्टेंट है। देन देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, तो इन सारे क्वेश्चंस के आप यस नो आंसर्स देंगे, दोनों आंसर्स ट्राई करेंगे, यस भी ट्राई करेंगे, नो भी ट्राई करेंगे। सो कुछ क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुछ क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो किसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, डू वी हैव टू इनवाइट देम, if the question is like this, do we have to invite them, then understand the sense of this question. What is the meaning coming out of this question? Do we have to invite them? And then give the answer according to this question. You will give both answers, yes answer and no answer. Do we have to invite them? Possibly you will say, yes, we have to invite them. And then negative answer, no, we don't have to invite them. सो ये जब आप ट्राई करके देखेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, डस की जगह डोंट हो जाए, डोंट की जगह डस हो जाए, हैज की जगह हैव हो जाए। ओके, ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, ये सब होंगे स्टार्टिंग, लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है। जितना ज्यादा कंटिन्यू रखेंगे उतना ज्यादा फिर वो कंफ्यूजन, वो हेजिटेशन, वो मिस्टेक्स चली जाएंगी। और अगर हमने कंटिन्यू नहीं रखा, हमने रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करी, तो फिर वो कंफ्यूजन एज इट इज ही रहेगा, और गैप आ जाएगा तो फिर और कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ओके, सो इसलिए जितना ज्यादा आप कंटिन्यूटी रखेंगे सेंटेंसेस की, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली, उतना ज्यादा आप कंफर्टेबल होते रहेंगे। फिर आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि ओके सिंगुलर सब्जेक्ट, हाँ आई नीड टू यूज दिस और आई नीड टू यूज दैट, देन इट विल बिकम natural, फिर वो natural हो जाएगा, and it will become comfort, it will come comfortably, right? And then there would be no no hesitation, no nervousness, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको efforts देने, okay, efforts लगाने। So here we are making questions, यहाँ पे हम questions बना रहे हैं, and there are two types of questions. One question is with does and one question is with do. And वो क्यों है? वो because subject का हमको ख्याल रखना है, subject से हमारा agree करना चाहिए, right? So that's why you will take care of these things. Next part. Now, after making yes no questions, you will also make questions with WH words. फिर आप WH word से भी questions बनाएंगे। WH वर्ड से जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो सिंपली हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे एज इट इज, जो हमने यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। सेम थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट डज, प्लूरल सब्जेक्ट डू, लेकिन उसके पहले बिकॉज यू आर आस्किंग WH वर्ड क्वेश्चन, यू विल यूज WH वर्ड। नाउ WH वर्ड, इट कैन बी एनी WH वर्ड, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एज ए स्पीकर, एज ए राइटर, आपको क्या पूछना है, आपको क्या क्वेश्चन करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा WH वर्ड यूज करेंगे।
ओके, सो बस यहाँ पे WH वर्ड से हम क्वेश्चंस बना लेंगे। एंड WH वर्ड से क्वेश्चंस बनाते वक्त जो उसमें चेंजेस होना है उन चेंजेस का आप ध्यान रखेंगे। एंड सिंपल चेंजेस, राइट, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि क्या चेंजेस है, क्या सेंस है। ओके, सो यहाँ पे सेंस समझना है कि सेंस क्या आ रहा है, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, टू गिव आंसर्स। सो जैसे अभी आपने एग्जांपल्स देखे कुछ क्वेश्चंस के, ऐसे आप खुद से भी क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, हम क्या पूछ सकते हैं, हम किस बारे में कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। एंड जब आप क्वेश्चन बना लें उसका सेंस देखिए, व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट, व्हाट इज द मीनिंग कमिंग आउट, एंड व्हेन यू सी दैट देन ट्राई द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, फिर उसका आंसर ट्राई करें। ओके, एंड अगर ऐसा आप कर रहे हैं एंड आपके साथ कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उसमें। ओके, एंड कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, सो देन यू हैव comment section, you can ask there, you can write your question there, you can write some examples in the comment section. You can take the help of comment section, it is there for your help. Okay. एंड ये एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे WH वर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि उनके आंसर्स भी ट्राई करे गए। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़िए, आंसर्स पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से उसका आंसर आ रहा है। ओके, एंड व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन एंड दिस आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज शी हैव टू डू। सो यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको क्या ध्यान देना है, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, WH वर्ड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, व्हाट डज शी हैव टू डू। Next thing, what is the meaning coming out from this structure? What is this question asking? What does she have to do? So, क्या मीनिंग निकल रहा है इस क्वेश्चन का, व्हाट डज शी हैव टू डू, उसे क्या करना है। Okay, so you are understanding the sense. Okay, what does she have to do? Then answer is coming, she has to help mother in the kitchen. So this is the answer coming of this question. What does she have to do? उसे क्या करना है? She has to help mother in the kitchen. उसको मदर की हेल्प करना है किचन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। जब आप आंसर देखेंगे तो आप देखेंगे, why are you making this answer? Okay, why are you writing this answer? Why are you using she has to? Why? Because singular subject, positive sentence, she has to help mother in the kitchen. So थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप ट्राई कर रहे हैं सेंटेंसेस, so pay attention to the formation of structures also. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो फिर ये आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होगा। Then sentences will come comfortably, questions, answers, जो भी sentences हैं वो comfortably आए। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में यू हैव टू पे अ बिट अटेंशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स, दैट वी फॉलो दीज स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू आस्क दिस, इन ऑर्डर टू से दिस, सो दैट यू हैव अंडरस्टैंड। फिर आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ पे ये क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों यूज हो रहा है, हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे वैसा क्यों बोल रहे हैं। सो उसके लिए हम पहले ही स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स एंड ये हमको फॉलो करना है। एंड फॉलो करने के बाद आप एग्जाम्पल्स यूज करिए, ट्राई करिए सेंटेंसेस, एंड ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, एंड देन यू आर कंफर्टेबल, फिर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हम सेंटेंसेस इस तरह से यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स। Read these questions, understand the meaning of these questions, read the answers, understand the answer of these questions. Okay. So I will not tell you all the questions and all the answers. This you have to do by yourself and not difficult. Difficult नहीं है, very simple है, right? क्या करना है आपको? आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, उसके आंसर का मीनिंग समझना है, एंड फिर आपको ये देखना है कि ये जो छोटे से चेंजेस हो रहे हैं, right, somewhere has to, somewhere does, somewhere do, don't, doesn't, why all these changes are happening. Okay, and उसका रीजन है बिकॉज हमको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो करना है। उसको फॉलो बिना किए हम करेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते। रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, रॉन्ग हो जाएगा राइटिंग में भी एंड स्पोकन में। ओके,
ये हमारे मॉडल वर्क के प्रेजेंट रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमने आज देख लिए हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विद WH वर्ड्स रिलेटेड टू प्रेजेंट सिचुएशन। आपने देख लिए, आपने समझ लिया, एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब आपको ट्राई करना है अपनी तरफ से। जितना ज्यादा ट्राई होगा, जितना ज्यादा यूज करेंगे सेंटेंसेस, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर। ओके। सो अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपकी है कि आप कितना ज्यादा उन सेंटेंसेस को, इन क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं, यूज कर करके देख रहे हैं। एंड ये आपको अपने तरफ से करना है। ओके। एंड इसके साथ साथ जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने कर चुके हैं, उनको भी आपको ट्राई करते रहे। जितना ज्यादा सब मिक्स करके सेंटेंसेस यूज करेंगे, कभी किसी सिचुएशन से क्वेश्चन सोच लिया, उसका आंसर दे लिया, कभी किसी सिचुएशन से क्वेश्चन सोच लिया, उसका आंसर दे लिया। ऐसे जब आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे ट्राई कर लेंगे, वो एक क्विक रिवीजन हो गया। रिवीजन का रिवीजन हो गया, सेंटेंसेस के सेंटेंस हमने प्रैक्टिस कर लिए। एंड बस, दैट्स ऑल। हमको कुछ ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी प्रैक्टिस है। राइट, थिंक, आंसर, थिंक, आंसर, आस्क क्वेश्चन, गिव आंसर, आस्क क्वेश्चन, गिव आंसर। लिसन टू द क्वेश्चन, अगर कोई है आपके साथ, ask that person, request that person to ask something, to ask a question, and then you give the answer. Then you ask a question and that person gives the answer. इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड इफ देयर इज नो वन, देन फिर आपको खुद से ये सब चीजें करना है, जैसे नॉर्मली हम क्लास में करते हैं। आई आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड देन यू लिसन टू दोस क्वेश्चंस एंड देन यू गिव आंसर। इन द सेम वे यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ये आपको खुद से भी करना है। ओके, डन। ओके, अब जल्दी से आप ये देखिए, एक एग्जाम्पल है, छोटा सा कॉन्वर्सेशन हो रहा है दो फ्रेंड्स के बीच में। देयर आर टू फ्रेंड्स, काजल एंड कोमल। Okay, Kajal is asking something and Komal is replying. Komal is answering. Read this conversation, understand the conversation, understand the question, understand the answers coming from Komal. Okay, and then also understand the different sentences. Different sentences भी समझिए यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं, क्या सेंस निकल रहा है, क्या मीनिंग निकल रहा है, कोमल क्या बोलना चाह रही हैं, काजल क्या पूछना चाह रही हैं। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके। इन ये जो छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस यूज हुई हैं। यहाँ पे वर्ब टू बी की सिचुएशन यूज हुई है, यहाँ पे पोजीशन यूज हुआ है, यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, हैज टू, हैव टू यूज हो रहा है। फ्यूचर यूज हो रहा है, वर्ब टू बी का फ्यूचर पार्ट यूज हो रहा है। इन सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा हाँ, हम इनको इस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन में ये इस तरह से यूज हो रहा है। Okay, so read this conversation, understand the meaning coming out from this conversation. Okay, क्या मीनिंग निकल रहा है इस कॉन्वर्सेशन के, क्या बात हो रही है दोनों काजल एंड कोमल में, क्या बात हो रही है। ओके। अभी मैं आप लोगों को अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले आपको ये खुद ट्राई करना। ओके, खुद ट्राई करना है एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू दैट या दिस इज द सेंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। बट आई एम श्योर कि आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या सेंस निकल रहा है, क्या क्वेश्चन का सेंस आ रहा है, क्या आंसर दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेज विदाउट एनी डिफिकल्टी। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल द सेंटेंसेस आर सुपर इजी। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको क्या कंफर्टेबली सारे सेंटेंसेस अच्छे से सिचुएशन वाइज समझ में आ रहे हैं। You are understanding them very comfortably, right? Without opening the notebook, without seeing the different structures, without thinking a lot that, okay, what is the meaning of this statement? What does it mean? ऐसा तो नहीं हो रहा है, बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, राइट। ये थोड़ा सा हम हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ये कॉन्वर्सेशन आपको कितना क्विकली समझ में आ रहा है वो आपको ट्राई करना है। ओके। एंड अगर डिफिकल्टी हो रही है समझने में, तो देन डेफिनेटली आप स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा रिकॉल करिए कि जब ये स्ट्रक्चर यूज होता है तो देन व्हाट इज द सेंस, what do we understand from this kind of sentence, okay? And then try to make your own conversation,
फिर आप भी ट्राई करिए कि अपना एक खुद से कॉन्वर्सेशन ट्राई करिए। इसकी हेल्प से, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप भी कुछ सोचिए कि दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं एंड वन इज आस्किंग क्वेश्चन, वन इज रिप्लाई। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं, वो पूरा आपके ऊपर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉन्वर्सेशन क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, सो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपके पास एक और एक्सरसाइज आई है। एंड वो एक्सरसाइज क्या है कि अब आप सोचिए टू राइट अ कॉन्वर्सेशन, स्मॉल कॉन्वर्सेशन वेयर टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट सम, टू फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। ओके, एंड जब ये आप ट्राई करेंगे सो डेफिनेटली आपका जो थॉट प्रोसेस, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वो भी थोड़ा सा पुश होगी, राइट? बिकॉज वो भी पुश करना है, बिकॉज नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो उसी से रिलेटेड है। ओके, स्पोकन में थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इसके ऊपर भी हम डेफिनेटली बात करेंगे कि थॉट प्रोसेस से क्या समझ रहे हैं। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि अभी आपको सोचना है एंड इसी तरह से कुछ सिमिलर सा कॉन्वर्सेशन ट्राई कर। अगर आप कॉन्वर्सेशन ट्राई करते हैं, क्रिएट करते हैं, सो देन यू कैन पोस्ट दैट कॉन्वर्सेशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में वो कॉन्वर्सेशन पोस्ट करिए। के पोस्ट करके थोड़ा सा यू विल आल्सो फील राइट, yes, I can create conversation, I can understand such kind of sentences, and then you can think of different sentences. ऐसा नहीं है कि कॉन्वर्सेशन आपको एज इट इज यही कॉपी करना है, बिकॉज आपके थॉट्स हैं, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हैं। तो वो ट्राई करके देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या आंसर ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो थिंक दिस वे। ओके, ऐसे सोच के ट्राई करें, करेंगे ट्राई। ओके, ऑल राइट, आई नो दैट ऑल ऑफ यू विल ट्राई, ट्राई करके देखें। ओके, चलिए, गुड। नेक्स्ट आप लोग के लिए एक और एक्सरसाइज है। ओके, सो जैसे आप देखते हैं क्लास में कि एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइजेस ये इसलिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सिर्फ स्ट्रक्चर्स से समझना कि इस स्ट्रक्चर से ये सेंस निकल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन व्हेन वी यूज दोज स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस, जब वो उन स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, तब एक्चुअल क्लैरिटी आती है कि दैट या सेंटेंस कैन बी रिटन लाइक दिस, सेंटेंस कैन बी स्पोकन लाइक दिस। ओके, सो इसलिए ये बोला जाता है बार बार कि आपको प्रैक्टिस करनी, बिकॉज जितना ज्यादा आप सोचेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे, ट्राई करेंगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहेगी कि हाँ, दिस सेंटेंस कैन बी यूज लाइक this sentence can be spoken like this, so you will get lot of ideas when you make sentences. Okay, so आपको वहाँ पे अपने errors भी पता चलेंगी, confusion भी पता चलेगा, and वो parts भी पता चलेंगे जहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए, उनको यूज कर रहे हैं। एंड उन पार्ट्स का भी आइडिया मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा हाउ टू मेक अ क्वेश्चन, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स वंस यू ट्राई। ओके, एंड आप लोग ये एक्सरसाइज भी ट्राई करेंगे। यहाँ पे सिंपल से कुछ एग्जांपल्स हैं। हैज टू, हैव टू, मॉडल वर्ब, प्रेजेंट सिचुएशन, एंड आप ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं फर्स्ट पार्ट में, 1 to 10। So you will complete these sentences thinking from positive situation, positive where you don't use not, okay, जहाँ पे आप not use नहीं करते। And then in the second part you have negative forms. So यहाँ पे आप negative sentences complete करेंगे। ओके, सो ये तो एग्जाम्पल्स हैं, अब आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आप नेगेटिव को पॉजिटिव बना के देख लीजिए, पॉजिटिव को नेगेटिव बना के देख लीजिए। वंस यू अंडरस्टैंड देन यू कैन डू एनीथिंग। एक बार आपको समझ में आ गया हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू यूज सेंटेंसेस, देन इट्स अ कप ऑफ टी फॉर यू। बहुत इजी हो जाता है, राइट? फिर आप उसको ट्राई कर करके देखिए, राइट? जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिए, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट ट्राई करके देख लीजिए। if you do like this then you become super comfortable, right? So इस तरह से आपको ट्राई करके देखना है। So here you will complete all these sentences
okay, negative forms, and then here you will ask questions. यहाँ पे आप questions पूछेंगे. Okay, so आप three parts कर रहे हैं. आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, आप नेगेटिव सेंटेंसेस ट्राई कर रहे हैं, आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं, ओके, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तीनों पार्ट्स कर लेंगे. एंड कोई डिफिकल्टी तो आएगी नहीं, राइट? आई एम श्योर, बिकॉज आप लोगों को समझ में आ गया है. यू कैन इजीली मेक ऑल दीज डिफरेंट सेंटेंसेस. इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं, देन सी व्हाट इज द सेंस कमिंग आउट. बस ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी समझ में आ गया है तो हम जल्दी जल्दी सेंटेंस यूज कर रहे हैं, हमने कहाँ पे हैज टू यूज करना है, कहाँ पे हैव टू यूज करना है, हमने जल्दी से कंप्लीट किया एंड देन हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जंप कर गए. नो, when you complete the sentence, then see what is the sense coming out. If you are making negative sentence, change it into positive. See the sense. If you are making positive sentence, change it into negative sentence. See the sense, see the meaning. If you are using singular subject, then what is the sense coming out? If you are using plural subject, then see what is the sense coming out. Okay. So these are the ways to practice. Okay. So that you are getting comfortable. Okay. So you are getting ideas how to use sentences in different ways. And जितना ज़्यादा आप ये ideas लेंगे उतना ज़्यादा आप comfortable हो जाएंगे sentences में. Okay. एंड रिमेंबर कि यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस हैं वो आप हैज टू हैव टू मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस ट्राई कर रहे हैं. आपको दूसरी सिचुएशन से भी सेंटेंसेस ट्राई करते रहना है. ओके. एंड नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम रैपिड फायर भी करेंगे. ओके, सो रैपिड फायर वेयर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस क्विकली एंड यू विल थिंक ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ओके, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. For today, you have to complete this exercise and you have to complete the way I have told you. Okay, वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको हिंट दिया है, आइडिया दिया है कि कैसे करना है. ओके, एंड वो जो छोटा सा कॉन्वर्सेशन आपने देखा है उस कॉन्वर्सेशन को भी आपको पहले तो कंप्लीट कर लेना है, समझ लेना है, इजी है, समझ में आ जाएगा. एंड देन समझने के बाद आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ट्राई करना है दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन कॉन्वर्सेशन. आप अपना कॉन्वर्सेशन एक क्रिएट करके देखिए, आस्क सम क्वेश्चन, गिव आंसर. ओके, थिंक ऑफ अ सिचुएशन. कोई सिचुएशन सोचिए जहाँ पे समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन और मे बी यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन एंड समबडी एल्स इज रिप्लाइंग और मे बी योर फ्रेंड इज रिप्लाइंग. सो थिंक दैट वे. ओके, इस तरह से छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करने की ट्राई करिए एंड देन सी के वहाँ पे आपके थॉट्स क्या आ रहे हैं, वहाँ पे आपके आइडियाज क्या आ रहे हैं, वहाँ पे आपके किस तरह से क्वेश्चंस आप सोच रहे हैं. जब आप क्वेश्चन सोच रहे हैं, आर यू एबल टू मेक दोज क्वेश्चंस प्रॉपरली कंफर्टेबली, वो प्रॉपरली कंफर्टेबली आ रहे हैं. आर यू ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड कंफर्टेबली, क्या उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली कंफर्टेबली आ रहे हैं. ओके, सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो कितनी ठीक है, या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, नर्वसनेस हो रही है, या क्वेश्चंस आ रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा. सो अगर समझ में नहीं आ रहा देन यू हैव कमेंट सेक्शन, यू कैन राइट योर क्वेश्चन देयर. यू कैन राइट क्वेश्चन इन हिंदी, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, एंड you can also post a small conversation in that comment section. So अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसको वहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो डू ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें करना है आपको. ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द पास्ट सिचुएशन ऑफ मॉडल वर्ब हैज टू हैव टू, हाउ टू यूज पास्ट रिलेटेड सेंटेंसेस ऑफ दिस सिचुएशन. And लेकिन practice, you have to continue practicing. Okay, continue रखना है आपको practice. And this much for today's class. And remember that there are other classes also running. Okay, so कोई भी आपके fans हैं, family members हैं जिनको इन क्लासेस के बारे में पता नहीं है, वो इंटरेस्टेड हैं, उनको बताइए, उनकी हेल्प करिए. राइट, एंड उनसे भी बोलिए कि वो ये क्लासेस अटेंड करें. ओके, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें. ओके, उनकी भी हेल्प होगी, एडवांटेज मिलेगा. एंड देन जो दूसरी क्लासेस हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स,
अगर स्टूडेंट्स उन क्लासेस को सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको बता दीजिए, उनकी हेल्प करिए, राइट? सो दैट वे दे कैन ऑल्सो attend and learn, and they can also get the benefits from all these classes. Okay, so थोड़ा सा मैसेज को स्प्रेड करिए, ओके, इन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैसेज स्प्रेड करिए among your friends, among your family members. ओके, सो अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरों को भी बेनिफिट हो जाए, ओके उनका भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, वो भी यूज करने लगे, एंड फिर उससे आपको भी बेनिफिट होगा. इफ यू टेल योर फ्रेंड्स, इफ यू टेल योर फैमिली मेंबर्स, सो देन यू हैव पार्टनर्स. ओके, फिर आपके पास पार्टनर्स होंगे, then you have people with who you can practice, so then you can practice together also. So एक वो भी एक hidden benefit होगा, right? अगर आप किसी को शेयर करते. Okay, so this is for today, and we will continue in the next class. Okay, everyone, and take care of yourself, and we will meet in the next class. Bye bye.